दोस्तों, my very dear friends, my colleagues, my wife, her first co-star, that's me, Shatru's wife Poonam, my son Tushar, everybody, thank you for coming here and honoring me. मेरा एक बहुत घिसा पिटा पुराना शेर है जो मैं हमेशा कहता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये मूवमेंट अप्रोप्रिएट है उस शेर के लिए, मैं कह देता हूँ। दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते, जिंदगी आपकी नवाजिश है वरना हम कब के मर गए होते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने 200 से ज़्यादा फिल्में की हैं। हर एक दौर का अपना एक तरीका होता है। मेरे दौर में हम 3-3 शिफ्टें करते थे। सुबह 7 से लेके 2 बजे तक होती है, पर हम 12:30 बजे 1 बजे निकल जाते थे। 1 से शाम के 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट और 5 से लेके 10-11 बजे तक तीसरी शिफ्ट। ये सिलसिला बहुत सारे एक्टर करते थे और हमें बड़ी सिक्योरिटी फील होती थी। शायद मे बी आवर बैकग्राउंड वॉज लाइक दैट। आई एम फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो मेरी सिक्योरिटी इसी में थी कि मुझे जब काम मिला तो काम का इतना भूखा था कि कुछ छोड़ने को दिल ही नहीं करता था। उस ज़माने में 30-30, 40-40 फिल्में साइन करते थे। पिक्चर कब ख़त्म होने वाली है ये कभी मालूम नहीं होता था, जो हो गई हो गई। पर जब कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह 7 से 1 बजे तक शूटिंग की और शाम दोपहर को 2 बजे से 5-6 बजे तक की। तीसरी शिफ्ट में कुछ आया नहीं या कुछ कैंसिल हो गई तो इनसिक्योरिटी आ जाती थी, ये तीसरी शिफ्ट कैसे गायब हो गई। आजकल का दौर बिल्कुल अलग है। आज तो लोग एक फिल्म 1 साल में करते हैं, बहुत ध्यान देके, और शुरू करते हैं तो एंड करते हैं। पहले एक तरीका ये भी था कि अगर फिल्म बम्बई में लगती है आज तो दिल्ली यूपी में लगती थी 1 साल बाद, ये CPCI में लगती थी 6 महीने बाद। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है अभी सब फिल्में एक साथ लगती। सो दिस इज द काइंड ऑफ चेंज विच हैपन्स all the time and we keep moving. So we have moved, so that is not a great criteria that I did 200 films. But anyway, I thank you for honoring me with that. Or I thank UTV Stars, Walk of the Stars, for giving me an opportunity to be on this podium in front of all of you and honoring we actors and making people remember through this medium that we were there and we did something for the film industry. Thank you. Jai Mata Di. Probably larger number than even the Hollywood stars, but fans don't have anywhere to go and feel their idols in some way or the other. So this is awesome. And very, very happy to see Dad's friends here also. I think not just him, I think his friendships are legendary. I don't think anybody in the industry, especially in the field of acting, no hero has had such good friends like Gudu Uncle, Prem Uncle, and all the other friends. And the same friends for so many years. So I think this is an achievement, and I think the people who are here, even some of his co-stars, Maushmi ji, Poonam ji, they are here. I think this is also an achievement. So I'm excited to see all these faces here also. I think I can't say anything more than I think Papa's been an all-rounder as far as an actor goes, as a father goes, as a human being goes. He probably is the nicest person I know, and I think everyone from my house, staff, to the people I know can actually vouch for his niceness. I think it's an honor to be his daughter, and nothing more to say except that everyone he has earned, more than only his films, are here to share, because this is the earning, his friends, his family, his co-stars. यार नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल लग गया, कि सजनी पे दिल लग गया। कोई अले बेले देखे, हसीनों के मेले देखे, जवानी के रेले देखे, दिल पे
ओ जो तू छा गया, एवरीबॉडी, जो तू छा गया, अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल लग गया कि सजनी पे दिल लग गया. Bestowed on Mr. Jitendra, and he truly deserves this because the immense contribution he has given to this industry for the last 3 or 4 decades, and till today, what he looked in Geet Gaya Patrone, he looks better today. So that's the biggest honor, and I congratulate him and his family and all his friends for this achievement. Thank you. I would love to say this. I was really proud to be working with Jitu ji. And I must tell you how he discovered me at my friend's wedding. Actually, B.R. Chopra ji's daughter's wedding. And from there, he took me straight to meet the director of Mr. Dhundi, right? Producer Dhundi and Ravikant Nagaich. And he said, you have to come and I want you to meet somebody. And that's how I realized that I was working in Jigri Dost with him. And Mumtaz ji, and I was the heroine and he was playing a double role in that. And after working one day, while shooting, he tells me, you know something, you should be in Nirmala Niketan, not in films. You remember? बोला था निर्मला निकेतन में होना चाहिए आपको, फिल्मों में नहीं. Then he told my husband कि she was such a nice girl, I didn't want her to be in films. Actually, that's the truth. She was totally non-filmy, and me and Shatru, you can imagine, totally filmy. She married my best friend that time. सबने सब कुछ कह दिया है. मैं खाली एक ही बात बोलूंगी. जितेंद्र का मतलब है जो इंद्रियों में जीत दिखाता है. ही इज लुकिंग लाइक दैट ओनली, सो यू पीपल ऑल नो. नंबर 1 एंड नंबर 2, थैंक यू UTV जो आपने ये ऑसम आइडिया शुरू किया है. ऑल द बेस्ट and thank you everybody who are present here. I think Jitu really deserved this. Thank you. ये हमारी टीम के ओपनिंग बैट्समैन है वैसे. Friends, ये हर काम प्रेम से करते हैं. ये रेप भी करते हैं तो प्रेम से. I'm very glad today that I am here today with my idol, who has been my inspiration from my young days. And in fact, I would like to narrate you. I would like to narrate you one incident which is very, very important for you to know it. That there was a dramatic competition, used to be dramatic competition in our Simla. So Mr. Jitendra had come as a chief guest there. So he gave me the award for the best actor, and he asked me one question only, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा साहब मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं आप जैसा महान कलाकार बनूं. उतना हैंडसम तो नहीं हूं, लेकिन आप इतना मशहूर शोहरत हासिल कर सकूं. तो खैर आज मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि मेरे आइडल ने ये इज्जत जो दी है UTV वालों ने, उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद. बहुत बहुत मुबारकबाद जीतू को, who deserves, because he has been a solo hero for the 35 years. Very few people have been there. All the best and God bless you. Thank you. No, but I tell you, जिंदगी में सब कुछ मिलता है, अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है. And I genuinely treasure my friends as my real wealth and my real support. Especially, I am admitting today at this age that what I get from them is a big support and big relief and big relaxation, because we meet every day to play cards. Prem Chopra and I knew 4 shares, जो हम हर पार्टी में हर जगह जहाँ मौका मिलता था बोलते थे. अगर मैंने पहला शेयर बोल दिया तो मेरी मुसीबत होती थी कि वो 4th इधर खत्म हो जाता था, फिर मेरे पास होता नहीं था कुछ बोलने के लिए. और अगर किसी ने वो पार्टी अटेंड की है 2-3 बार तो समझ जाते थे ये दोनों अभी वही 4 शेयर पढ़ने वाले हैं. इसलिए अभी आजकल हमने बंद कर दिया. फिर भी मैं प्रेम को बोलूंगा कि एक शेयर सुना दे. मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा दोनों का इकट्ठा ही जोड़ा हुआ शेर है,
और साहब आपके लिए भी है कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना। लाइफ इज ए चैलेंज, फेस इट। तो याद रखो कि बुझ जाए शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है। अरे मायूस ना होना, इरादे ना बदलना, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। Actually, I wanted to call Shobha on the stage. That's when I wanted to say this. वफा पर्दा, जफा पर्दा, मोहब्बत सर बसर पर्दा, अजी चले आओ भी, घर वाले हैं, घर वालों से क्या पर्दा। कुछ जो भी करते हैं वो खुलेआम करते हैं, खुलेआम प्यार करते हैं, खुलेआम प्यार देते हैं। ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनकी अच्छाई की वजह से हम अच्छे हो गए हैं। तो सोबत का असर हो गया है, पता है। एंड वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 30-35 ईयर्स। और हफ्ते में हम घर वाले तो ये कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा दोस्त हैं, घर वालों को कम आप ध्यान रखते हैं। यानी वाकई में सच है कि हम लोग ज़्यादा वक्त गुजारते हैं साथ में दोस्तों के साथ, और कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं कहते हैं, किसी के बारे में किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। जब वो एक्टर थे, जब मैं एक्टर था, जब ऋषि कपूर एक्टर थे, हम तीनों फिर भी बहुत अच्छे दोस्त थे। क्योंकि दोस्त इसलिए थे क्योंकि हम आपस में कभी कंपटीशन नहीं करते थे, और ना हम किसी को कहते थे। मैं उस वक्त इतना अच्छा एक्टर नहीं था, मेरी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, फिर भी मैंने कभी उनसे कमी नहीं कहा जितेंद्र से और ऋषि कपूर से कि यार मुझे किसी पिक्चर में रोल दिलवा दो। तो इसलिए ये जो दोस्ती है, ये अपनी एक सच्ची दोस्ती है, सच्ची बुनियाद की दोस्ती है। मैं काका का, राजेश खन्ना का सेरेमनी अटेंड की थी। डिम्पल ने और अक्षय ने और ट्विंकल ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, और मुझे खुशी है कि काका एंड मी वर स्कूल फ्रेंड्स, वी स्टडीड टुगेदर इन सेम स्कूल। और ये भी हुआ कि मैंने मेरा नाम बदलकर आर.के. से जे.के. किया, मेरा नाम जितेंद्र हुआ, तो वो जो जतीन था जिसका नाम, उसको जे.के. से आर.के. बनना पड़ा। सो उसका जो फंक्शन था, वो मेमोरी मेरे दिमाग में बहुत बड़ा इम्प्रेशन कर गई है, और उसकी यादें बहुत ज़ोरदार है। देखिए, पहले कमर्शियल सिनेमा होता था और ऑफ बीट सिनेमा होता था, और अब ये फ़र्क है कि अब अच्छा सिनेमा और बुरा सिनेमा है। ऑडियंस इज़ देयर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ movies, whether you make masala movie, you make off-beat movie, you make a different genre movie, किसी भी किस्म की फिल्म हो, मसाला हो, मारा मारी हो, कॉमेडी हो, या कुछ हटके हो, सब किस्म की फिल्में अच्छी फिल्म होनी चाहिए। उसका ऑडियंस ऑफकोर्स बहुत सारे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो हीरोज़ हैं, इनसे बड़ा कोई हेल्थ का एम्बेसडर नहीं हो सकता। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी हीरो हैं, आप मुझे बताइए एक भी हीरो जो आउट ऑफ शेप है, कोई भी नहीं है। दे आर सो वेल केप्ट, दे आर सो फिट। हमारा पूरा देश उनसे कितना बेनिफिट कर रहा है, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो कोई इसको एनालाइज कर रहे थे, इनसे बड़ा काम कोई नहीं कर रहा जो ये हीरो लोग कर रहे हैं। जय माता दी। आई विश एवरीबडी वेरी वेरी प्रॉस्परस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओह, रफ़ी साहब जैसा आदमी मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। उनकी आवाज़ तो ग्रेट थी, तभी तो इतने बड़े म्यूज़िक बैकग्राउंड सिंगर बने, बट लेकिन उनके नेचर में जो नम्रता, जो हम्बलनेस थी, जो ह्यूमिलिटी से वो गाते थे, वो चीज़ लोगों को आज भी मज़ा आ रहा है और सुन रहे हैं। ऐसा ह्यूमन बीइंग बहुत रेयरली आते हैं।